Hi everyone, good afternoon. Well, this is Sarfraz Khan, and I welcome you all in my YouTube channel that is Career Skills Academy. Well, once again, I've come with a new video that is current affairs of 19th June and 20th June as well, right? Well, in this video, there will be 20 questions, and each question will have four options, and you will be given 5 seconds to answer. तो आज का जो वीडियो है वो है करंट अफेयर्स जिसमें 20 सवाल होंगे और हर सवाल के चार ऑप्शंस और आपको सही जवाब देने के लिए आपको मिलेंगे 5 सेकंड्स राइट। तो देर ना करें, हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन हियर वी हैव इज what type of weather alert was issued for Assam and Meghalaya on 19th June? असम और मेघालय के लिए 19 जून को किस प्रकार का मौसम अलर्ट जारी किया गया? ऑप्शन ए येलो अलर्ट, बी ऑरेंज अलर्ट, सी रेड अलर्ट एंड डी नो अलर्ट, राइट? Well, the options are before you and you have been given 5 seconds to answer. सवाल ये है कि असम और मेघालय के लिए 19 जून को किस प्रकार का मौसम अलर्ट जारी किया गया? Well, the correct answer is option C. That is red alert. So now we are moving to the second question of today's session is India evacuated how many students from Iran under Operation Sindhu on 19th June? भारत ने 19 जून को ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से कितने छात्रों को निकाला? India evacuated how many students from Iran under Operation Sindhu on 19th June? Option A 50, B 75, C 110 and D 150. Well, you have been given 5 seconds to answer. सवाल ये है कि भारत ने 19 जून को ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से कितने छात्रों को निकाला? पिछले 8 दिनों से ईरान और इसराइल के बीच जंग जारी है। इसी बीच हमारे देश के जो छात्र हैं 19 जून को ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से कितने छात्रों को निकाला गया? सवाल ये है, राइट? वेल, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज 110. So now we are moving to the third question, and the third question is before you. Which two countries restored full diplomatic ties during the G7 summit? G7 शिखर सम्मेलन के दौरान किन देशों ने पूर्ण राजनयिक संबंध बहाल किए? अभी फिलहाल G7 समिट हुआ जिसमें हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हिस्सा लिए, राइट? तो सवाल ये है कि G7 शिखर सम्मेलन के दौरान किन दो देशों ने पूर्ण राजनयिक संबंध बहाल किए? ऑप्शन ए इंडिया एंड यूएसए, बी इंडिया एंड यूके, सी इंडिया एंड कनाडा एंड डी इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया. Well, you have been given 5 seconds to answer. Well, the correct answer is option C. That is India and Canada, right? So now the fourth question is before you on the screen. The fourth question is what weather event affected Gurgaon on 19th June before the monsoon? 19 जून को मानसून से पहले गुरुग्राम में किस प्रकार की मौसम घटना हुई? ऑप्शन ए डस्ट स्टॉर्म एंड हीट वेव, बी मॉडरेट रेन विद वाटर लॉगिंग, सी लाइटनिंग विदाउट रेन एंड डी क्लियर सनी स्काईज. सवाल यह है कि 19 जून को मानसून से पहले गुरुग्राम में किस प्रकार के मौसम घटना हुई? Well, you have been given 5 seconds to answer. Well, the correct answer is option A, that is dust storm and heat wave. Now we are moving towards the fifth question of today's session. What preparedness measure did Chandigarh undertake on 19th June ahead of monsoon? 19 जून के आसपास मानसून से पहले चंडीगढ़ ने क्या तैयारी की? 19 जून के आसपास मानसून से पहले चंडीगढ़ ने क्या तैयारी की? सवाल ये है. Well, options are built
न्यू रिजर्वेयर्स, नया रिजर्वेयर्स बनाना, सेटअप फ्लड टीम्स एंड कंट्रोल रूम्स, फ्लड टीम तैयार करना, सेटअप करना और कंट्रोल रूम बनाना, सी डिप्लॉयड फॉरेस्ट फायर यूनिट्स, and D installed air quality monitors. Well, the options are before you and you have been given 5 seconds to answer. वेल 19 जून के आसपास मानसून से पहले चंडीगढ़ ने क्या तैयारी की? तो इसके आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज set up flood teams and control rooms. So now we are moving to the sixth question of today's session is, which Indian space mission is set to launch on 22 June? कौन सा भारतीय अंतरिक्ष मिशन 22 जून को लॉन्च होने वाला है? कौन सा भारतीय अंतरिक्ष मिशन 22 जून को लॉन्च होने वाला है? ऑप्शन ए चंद्रयान 4, बी एक्सियम 4, सी गगनयान 2 and D Mangalyaan 2. Well, you have been given 5 seconds to answer. Well, the correct answer is option B, that is Axiom 4. तो भारतीय अंतरिक्ष मिशन 22 जून को लॉन्च होने वाला है, वो कौन है? एक्सियम 4. इससे पहले ये 19 जून को ही स्केड्यूल होने वाला था, लॉन्च होने वाला था, लेकिन अब ये 22 जून को लॉन्च होगा, राइट? Now we are moving to the seventh question of today's session is, what did the IMD announce on 19 June about the monsoon? भारतीय मौसम विभाग ने 19 जून को मानसून के बारे में क्या घोषणा की? ऑप्शन ए सीजनल एंड, बी ऑनसेट इन गुजरात, सी रीचिंग दिल्ली by 25th June, and D below average rainfall forecast. Well, you have been given 5 seconds to answer. The options are before you. सवाल ये है कि भारतीय मौसम विभाग यानी आईएमडी ने 19 जून को मौसम के बारे में, मानसून के बारे में क्या घोषणा की? वेल, इसके सही जवाब है ऑप्शन सी, दैट इज रीचिंग दिल्ली बाय 25th जून, यानी मानसून दिल्ली पहुंचने की उम्मीद कब है? 25 जून को, राइट? वैसे झारखंड में मूसलाधार बारिश हो रही है, पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश ही बारिश हो रही है। इसी बीच झारखंड में कई स्कूलें बंद रही, राइट? So now we are moving to the 8th question of today's session is, India's monsoon rainfall for 2025 is projected at approximately, भारत में 2025 के लिए अनुमानित मानसूनी वर्षा लगभग कितनी होगी? Below average, B normal, C above average 106%, and D severe deficit. Well, the options are before you and you have been given 5 seconds to answer. ऑप्शन आपके सामने है और जवाब देने के लिए 5 सेकंड्स आपको मिल रहे हैं, राइट? Well, the correct answer is option C, that is above average. ऐसा अनुमान है कि 2025 में above average बारिश होगी, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th one. What significant international reconciliation happened at the G7 summit? G7 शिखर सम्मेलन में कौन सी महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय सुलह मेल मिलाप हुई? ऑप्शन ए यूएस चाइना ट्रेड डील, बी इंडिया पाकिस्तान पीस अकॉर्ड, सी इंडिया कनाडा डिप्लोमेटिक रीसेट, and D European Union UK summit on Brexit. Well, these are the options and you have been given 5 seconds to answer. सवाल ये है कि G7 शिखर सम्मेलन में कौन सी महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय सुलह मेल मिलाप हुई? इसके सही जवाब है ऑप्शन डी, दैट इज EU UK summit on Brexit. European Union UK summit on Brexit. So far we have done 9 questions and now we are moving to the 10th question of today's session is, what action did RBI take on liquidity operations for the third fortnight? भारतीय रिजर्व बैंक ने तीसरे पखवाड़े के लिए तरलता संचालन लिक्विडिटी ऑपरेशंस पर क्या कार्रवाई की?
increased repo operations, B, skipped 14-day main liquidity ops in the operations, introduced new collateral framework, and D, fixed interest floor. Well, the options are before you and you have been given 5 seconds to answer. राइट सवाल ये है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने तीसरे पखवाड़े के लिए तरलता संचालन लिक्विडिटी ऑपरेशंस पर क्या कार्रवाई की। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दैट इज स्किप्ड 14-day मेन liquidity ops, that is operations. So now we are moving. So far we have gone through 10 questions, and now we have the 11th question on the screen. Here is: recently, in which state or union territory was Caracal Carnival 2025 concluded? हाल ही में Caracal Carnival 2025 किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में संपन्न हुआ? ऑप्शन ए पुडुचेरी, बी लद्दाख, सी उत्तराखंड एंड डी छत्तीसगढ़। सवाल यह है कि हाल ही में कराइकल कार्निवल 2025 किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में संपन्न हुआ? वेल, इसके सही जवाब है ऑप्शन ए, दैट इज पुडुचेरी. So now we are moving to the 12th question of today's session is: recently, on the occasion of International Yoga Day, in which state was a yoga marathon organized at Brahma Sarovar? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर ब्रह्म सरोवर में योग मैराथन किस राज्य में आयोजित की गई थी? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी हरियाणा, सी बिहार एंड डी मध्य प्रदेश. Well, you have been given 5 seconds to answer and the options are before you. Option A Uttar Pradesh, B Haryana, C Bihar and D Madhya Pradesh. Well, the correct answer is option B, that is Haryana. Right? तो 13वां सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा. Recently, at which place in Uttar Pradesh ISRO has successfully tested a rocket launch? हाल ही में उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर इसरो ने सफलतापूर्वक रॉकेट लॉन्च का परीक्षण किया है? ऑप्शन ए कानपुर, बी लखनऊ, सी कुशीनगर एंड डी वाराणसी. ऑप्शन आपके सामने है एंड यू हैव बीन गिवन 5 सेकंड्स टू आंसर. सवाल यह है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर इसरो ने सफलतापूर्वक रॉकेट लॉन्च का परीक्षण किया है? वेल, इसके सही जवाब है ऑप्शन सी, दैट इज कुशीनगर. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन: वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट एग्रीकल्चरल ड्रोन इंडाइजेनाइजेशन सेंटर इनॉग्रेटेड? भारत का पहला कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण केंद्र कहां उद्घाटित किया गया था? सवाल यह है कि भारत का पहला कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण केंद्र कहां उद्घाटित किया गया था? ऑप्शन ए भोपाल, बी पुणे, सी चेन्नई एंड डी इंदौर. Well, you have been given 5 seconds to answer and the options are before you. ऑप्शन आपके सामने है. सवाल यह है कि भारत का पहला कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण केंद्र कहां उद्घाटित किया गया था या उद्घाटित किया गया? वेल, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दैट इज चेन्नई. नाउ द 15th question on the screen here we have is: which exercise has been started by India's Defense Cyber Agency recently? हाल ही में भारत की रक्षा साइबर एजेंसी द्वारा कौन सा अभ्यास शुरू किया गया है? ऑप्शन ए साइबर वॉर, बी साइबर एक्सरसाइज, सी साइबर डिफेंस एंड डी साइबर सिक्योरिटी. वेल, ऑप्शन आपके सामने है एंड यू हैव बीन गिवन 5 seconds to answer. Question is: which exercise has been started by India's Defense Cyber Agency recently?
And the correct answer is option D, that is cyber security. Now we have the 16th question on the screen, that is, where did Bhupendra Yadav chair the first meeting of the International Big Cat Alliance? भूपेंद्र यादव ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की पहली बैठक की अध्यक्षता कहाँ की? ऑप्शन ए मुंबई, बी न्यू दिल्ली, सी चेन्नई एंड डी बेंगलुरु. Well, the correct answer is option B, that is New Delhi. Right? सवाल क्या था? भूपेंद्र यादव ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की पहली बैठक कहाँ की? That is, answer is New Delhi. Now we have 17th question on the screen. That is, which state government launched its comprehensive minibus scheme on 16th June 2025? 16 जून 2025 को किस राज्य सरकार ने अपनी समग्र मिनी बस योजना शुरू की? As I said, as I have been telling you before for a number of days, that I have some problems while reading Hindi and speaking to you. But now I am improving day by day. सवाल ये है कि 16 जून 2025 को किस राज्य सरकार ने अपनी समग्र मिनी बस योजना शुरू की? ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी केरला, सी तेलंगाना एंड डी आंध्र प्रदेश. Well, you have been given 5 seconds to answer. सवाल क्या है? 16 जून 2025 को किस राज्य सरकार ने अपनी समग्र मिनी बस योजना शुरू की? इसके सही जवाब है ऑप्शन ए, that is तमिलनाडु. Now, the 18th question on the screen before you is, recently Prime Minister Narendra Modi was awarded the highest civilian honor, the Grand Cross of the Order of Macaries III, by which countries? Recently, Prime Minister Narendra Modi was awarded the highest civilian honor, the Grand Cross of the Order of Macaries III, by which country? हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकारियस थर्ड नामक सर्वोच्च नागरिक सम्मान किस देश द्वारा प्रदान किया गया? ऑप्शन ए साइप्रस, बी कनाडा, सी यूक्रेन एंड डी इटली. Well, the options are before you and you have been given 5 seconds to answer. इस G7 समिट के दौरान या G7 शिखर सम्मेलन के दौरान ये ऑनर मिला, राइट? हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, राइट? किस कंट्री के द्वारा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दैट इज कनाडा. नाउ वी हैव the 19th question on the screen, that is, when will the Gorakhpur Haryana atomic power plant start producing electricity? गोरखपुर हरियाणा परमाणु ऊर्जा संयंत्र बिजली का उत्पादन कब शुरू करेगा? ऑप्शन ए year 2026, B year 2028, C year 2031 and D year 2033. Well, the options are before you and you have been given 5 seconds to answer. Question is, गोरखपुर हरियाणा परमाणु ऊर्जा संयंत्र बिजली का उत्पादन कब शुरू करेगा? When will the Gorakhpur Haryana atomic power plant start producing electricity? Well, the correct answer is option C, that is 2031. Well, we have gone through 19th questions. Now, the last question of today's session is, which country has recently launched Operation Rising Lion to destroy Iran's nuclear sites and missiles factories? हाल ही में किस देश ने ईरान का परमाणु साइटों और मिसाइल कारखानों को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया है? Well, the options are before you. Option A, America, B, Saudi Arabia, C, Israel, and D, Russia. Well, you have been given 5 seconds to answer. Well, ये तो न्यूज अभी का लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज ही है, राइट?
इसका सही जवाब है इसराइल। इसराइल ने सबसे पहले ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत मिसाइल ईरान पर बम्बार्डिंग किया गया। इसके जवाब में ईरान ने लगातार पिछले कुछ दिनों से इसराइल पर बम्बार्डिंग कर रहा है, राइट। मिसाइल लगभग 400 से 450 मिसाइल अब तक या ड्रोन लेकर के सब हो चुका है, इसराइल पर हो गया, राइट। इससे पहले इसराइल ने गजा पर बहुत ज़्यादा, फ़लस्तीन पर, गजा पर बहुत ज़्यादा अपना वो हम्म, हुकूमत कहिए या फिर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय किया। मासूम बच्चे, मासूम लोग की जान गई। चलिए, तो अभी ईरान और इसराइल के बीच जंग जारी है, दोनों तरफ से पलटवार चल रहा है। तो ये सवाल आपके सामने मैंने कर दिया, राइट। सो फार वी हैव डन 20 क्वेश्चंस एंड अब हम लोग मिलेंगे किस जून करंट अफेयर्स के साथ, यानी कल। तब तक के लिए मैं यही कहूंगा कि स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर।